تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے پاس جو کھڑے ہیں ان کو آپ گڈ مارننگ بولیے. گاڈ بلیس یو چاہیے, ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیے کیونکہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریل سٹارٹ کی ہوئی ایپل آف گولڈ, سونے کے سیب, اس کی سیریل جو ہم نے سٹارٹ کی ہے, اور میری ایمان ہے کہ سیریل کے ذریعے سے آپ تربیت پاتے چلے جائیں گے اور روح القدس کے زور کو مانگیں گے اور پاکوں کا زور آپ کو مل جائے گا اور آسمان کی بادشاہی کی میں آپ داخل ہونے والے ہوں گے اور اپنے آپ کو تیار کریں گے. تو ایپل آف گولڈ کا جو آج کا سرمن ہے صحت کلامی کی باتیں, ہیلتھنگ ورلڈ کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ لکھا دیے خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں سے فلپیوں چوتھا باب اس کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم حوالہ پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں سے نیا نامہ ہے, فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, فلپیوں 4 باب اس کی 8 آیت. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, سنیے. غرض ہے بھائیوں, جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں, غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں سے آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے. امثال, خداوند کے کلام میں سے امثال ہے. خداوند کے کلام میں سے امثال کی کتاب ہے, پرانا ہے نامہ ہے. میں چاہوں گا پہلے ایک نئے نامہ میں سے حوالہ پڑھ لیں گے. تیتس کا خط ہے, دوسرا باب اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں سے تیتس کا خط ہے, دوسرا باب اس کی 7ویں آیت. پریز گاڈ, ہاللیلویا. آئیے پڑھتے ہیں حوالے کو. نیا نامہ تیتس دوسرا باب اس کی 7ویں آیت. یوں لکھا ہے, سنیے. سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنانا, تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو, تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے. اور آخری ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے امثال 12واں باب اس کی 18ویں آیت. خداوند کے کلام میں سے یوں لکھا ہے, امثال 12 باب اس کی 18ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے, سنیے. 12 باب اس کی 18ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے. بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں. بی پارٹ کے اندر لکھا ہے, لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت. شکریہ سر, بیٹھ جائیے. پاکروں کے لیے روح القدس نے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو سلا دیا. بہت کم تعلیم, بہت کم تعلیم. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور جو آج باتیں کرنے کو ہوں خداوند کے کلام میں سے, ایپل آف گولڈ سیریل کا, سونے کے سیب کی سیریل کا جو سرمن ہے, ہیلتھنگ ورلڈ, یعنی صحت کلامی کی باتیں. کیا لفظ ہے میرے ساتھ بولیے, صحت کلامی کی باتیں. یعنی باتیں وہ جو ہیل کر رہے ہیں. حالانکہ ہیلنگ تو کرائسٹ کے لہو سے ہے, شفاعت تو یسوع کے لہو سے ہے, مگر یہ باتیں جو ہیں صحت کلامی کی, ہیلتھنگ ورلڈ, یہ آپ کی زندگی کے اندر نکھار لاتی ہیں, شفا دیتی ہیں اور آپ ہیل ہو جاتے ہیں, برکت پا جاتے ہیں. یہ باتیں آج کرنے کو ہوں خداوند کے کلام سے. اور خداوند کے کلام میں سے سنیے, خدا کا بندہ پولس رسول اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے. اور تعلیم کیا دیتا ہے,
थीतस के खात के अंदर थीतस से कलाम करता है। वो कहता है कि अपनी तालीम में क्या करना, तेरी तालीम जो है, जो तू तालीम दे, जो तू बातें करे, तेरी तालीम की बातें जो है वो पाक हो। क्या हो? पाक हो, साफ हो। और दूसरे नंबर पर संजीदगी की बातें हो। तीसरे नंबर पर सिद्ध कलामी की बातें। आमीन। तीन बातों को थीतस के बारे में कहता है, अपने शागिर्द को सिखाता है। कहता है कि तेरी एजुकेशन के अंदर, तेरी तालीम के अंदर, जब तू तालीम दे तो तेरी तालीम के अंदर सफाई की बातें। सफाई का मतलब है जो तू खुदा का कलाम बयान करे, जो तू बातें करे, उसके अंदर अमेजिश ना डाल देना। उसके अंदर दुनिया की मनगढ़ंत कहानियां ना लोगों को सुनाते रहना। दुनिया के अंदर जब तू कलाम की बातें करे, किसी से टॉक करे, तो दुनिया की परियों की कहानियां ना सुनाते रहना, हनुमान की कहानियां ना सुनाते रहना, जादूगरों की कहानियां ना सुनाते रहना। दुनिया आज इस कदर इन चीजों के साथ चल रही है कि वो परियों की कहानियां बच्चों को दिखाई जा रही है, और मीडिया के अंदर मूवीज बन रही है, और लोग इन्हीं चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप दिखाते हैं। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द को तालीम देता है कि तेरी तालीम के अंदर सफाई की बातें, खालिस बातें, फॉल टीचिंग ना हो, गलत तालीमात ना घुसने पाए, सिखा लोगों को, बता। उसने उसे बताया गया कि कौन सी बातें हो तेरी तालीम के अंदर, सफाई की, पाकीज़गी की बातें। अमेजिश ना हो बीच में, दुनिया की कहानी कलाम सुना रहे नाल दुनिया की कहानियां सुना, नो, इसका मतलब अमेजिश डाल दिया। खुदा का कलाम हाँ और हाँ और ना है। आमीन। जहां पे हाँ है वहां पे हाँ ही करना है। तो ये खालिस कलाम खुदा चाहता है। खुदा का बंदा पौलुस अपने शागिर्द थीतस को कहता है कि तेरी तालीम में सफाई की बातें। दूसरी बात, संजीदगी की बातें। ऐसी बातें हो कि लोग खींचे चले आए। ये होली स्पिरिट करता है, पाकरू करता है। खालिस तालीम होगी तो लोग सुनने के लिए आएंगे। और वो कहता है थीतस, तेरी तालीम के अंदर साफ बातें और फिर संजीदा बातें। होली स्पिरिट उसके जरिए से लोगों को खींच रहा है खुदा की हजूरी में, सुनने के लिए लोग तैयार हो जाए। ऐसी बातें हो, ये संजीदा बातें। यानी ओपरी आग ना जला देना। ओपरी आग का मतलब होता है जब सैक्रिफाइस गुजारी जाती थी पुराने हरनामा के अंदर कुर्बानगाह के ऊपर, तो आग जो थी जलाई जाती थी। कुर्बानी को जलाने के लिए आग ऊपर से आती थी, आसमान से। लेकिन बाइबल में लिखा है नदब अब्यू, मूसा का भाई हारून, उसके दो बेटे, उनकी ड्यूटी लगी सैक्रिफाइस पर आग जलानी है, तो उन्होंने ऊपरी आग जला दी। और लिखा है आग ऊपर से आई और उनको चट कर गई, वो कोला बन गए, राख ही बन गए। क्यों? ऊपरी आग जलाई। भाई वो आग उन्होंने घर से लेकर जला दी। भाई वो आग लेते हैं जो आसमान से आती है, फिर वो स्टोर कर ली जाती है और सैक्रिफाइस गुजरानी जाती है। और आग को जब तेज करना है तो फिर ईंधन उसमें डाला जाता था और वो और आग भड़कती थी। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा तेरी बातें संजीदा। भाई ऊपरी आग ना जला देना। अगर कलाम के अंदर अमेजिश कर दोगे तो फिर यही हाल होगा, तबाही होगी, हलाकत होगी। और थीतुस को ये तालीम पौलुस ने दी। क्या कहा कि तेरी तालीम में कौन सी बातें हो? पाक बातें। दूसरी बात संजीदा बातें। तीसरी बात सिर्फ कलामी की बातें। ऐसी बातें की जाए कि लोग शिफा पा जाए, हील हो जाए, बीमार शिफा। तो आजकल दी गल्लां ही ऐसियां ने, ऐसी टिचकर लगाई जाती है ना, ऐसी बातें की जाती हैं, वो बंदे सड़के सवा हो तबाही हो जाए। उन्होंने गल ज़हन च गल सारा साल भुलदी नहीं। ऐसी सी बातें औरत मर्द एक दूसरे को कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है तेरी बातें पाक हो। थीतस को बताया जा रहा है उनके अंदर अमेजिश ना हो, दुनिया की कहानियां ना हो, अटकलम कहानियां ना हो। तेरी बातों के अंदर खालिस कलाम हो, संजीदा बातें, सिर्फ कलामी की बातें हो। ऐसी बातें कि लोग
शफाई पा जाए, हील हो जाए। आमीन। ये तीतुस को तालीम दी गई, तेरी बातों के अंदर तेरी बातें पाक हों, ऐसी तालीम देना जिस, और फिर संजीदा बातें हों। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है सिद्ध कलामी की बातें हों। ये तीतुस को कहा गया। उसके बाद थिमोथियुस को पौलुस रसूल कहता है याद रखिए कि जमाना के जो लोग हैं, जमाना ऐसा आ गया है, आएगा, उसे बताया गया कि लोग सही तालीम को छोड़ देंगे, यानी उसकी वजह रखेंगे मगर असर को कबूल नहीं करेंगे। मतलब नजर आएंगे कलाम पढ़ रहे हैं मगर उन्हें अमल नहीं करेंगे। बड़ा कलाम पढ़ा जा रहा है मगर अमल कोई नहीं है, असर ही नहीं है। लिखा वजह रखेंगे, क्या रखेंगे? वजह रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। थिमोथियुस को पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोग आएंगे अब कि वो क्या करेंगे, अपनी कानों की खुजली के बायस, करना खुजली करी थी ना, बड़ा स्वाद आता है, कानों की खुजली के बायस, लिखा अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशात के बायस ऐसे उस्ताद बना लेंगे जो उनकी मर्जी के मुताबिक, जो दुनियादार, जो कहानियां सुनाने वाले होंगे, जो कहानियां दुनिया की सुनाकर हंसाने वाले होंगे। लोग कहेंगे वाह बड़ा मजा है, मगर कलाम के अंदर तालीम नहीं, खालिसपन नहीं, उसकी जिंदगी में खुद अमल नहीं है। कलाम बड़ा सुनाएगा, लिखा बेतामल बात करने वाले की बातें दिल को छेद डालती है, जख्मी कर देती है। मगर लिखा है पाक बातें, तीतस तेरी तालीम में पाक बातें हो, संजीदा बातें हो, और फिर सिद्ध कलामी की बातें, लोग हील हो जाए। थिमोथियुस को कहा गया लोग क्या करेंगे, इस जमाना के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो असर तालीमी तौर पर अपने कानों की खुजली के बायस और अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशों के बायस से ऐसे उस्ताद चुन लेंगे जो दुनियादार होंगे, जिनके पास खालिस तालीम नहीं, अपने जैसे, क्योंकि खुद भी दुनियादार, और फिर ऐसे लोगों के पास जाना शुरू करेंगे जो दुनियादार होंगे। पौलुस रसूल इन अपने शागिर्दों को तालीम देता, फिर जो है एप्पल ऑफ गोल्ड की सीरियल के मुताबिक, जैसे सोने की टोकरी, उसके अंदर सेब रखेगा, मुख्तलिफ फ्रूट रखते हैं गोल्ड के, वाह खूबसूरत। फिर वो तालीम देता है मुआशरे के तल्लुक से, पौलुस रसूल कलीसिया के तल्लुक से, लीडरशिप के तल्लुक से, घरानों के तल्लुक से, फैमिलियों के तल्लुक से तालीम देता है। क्या देता है तालीम? बना बूढ़े बूढ़े मर्द जो है उनके तल्लुक से भी पौलुस रसूल तालीम देता है। सुनिए, बूढ़े मर्दों को खुदा का बंदा पौलुस रसूल तालीम देता है, कहता है कि बूढ़े जो हैं अपने एक्सपीरियंस जिनके पास है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी बसर की है, दुनिया के अंदर जिंदगी बसर की है, लिहाजा जो उन्होंने जिंदगी बसर की है उनके अंदर एक्सपीरियंस है। और फिर रूहानी कलीसिया के अंदर नजर आए बुजुर्ग बूढ़े मर्द जो हैं, और फिर बूढ़े मर्द जो हैं वो उनके अंदर जो क्वालिटी पाई जाए, उनके अंदर जो बातें नजर आए वो कौन सी है? लिखा परहेजगार हो। क्या वो परहेजगार हो, संजीदा हो, और खुदावंद के कलाम में लिखा है परहेजगार हो, संजीदा हो, मुत्तकी हो, और मुत्तकी के बाद लिखा है ईमान, मोहब्बत और सबर मसीह जैसा हो। आइए इस बात की हालेलुया। ये बुजुर्गों के तरफ से बताया गया। पौलुस रसूल ये तालीम देता कि कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, मुआशरे में जो बुजुर्ग हैं, उनको तालीम देना, यानी कि दुनिया कोई और ही तालीम दे देवे, और तरह की तालीम, दुनियादारी दी, तू उन दुनियादारी की तालीम से उससे उनको बचा लेना, बुजुर्गों को भी, और उनको ये तालीम देना कि वो क्या हो, परहेजगार हो, संजीदा हो, मुत्तकी हो, ईमान, मोहब्बत, सबर के अंदर वो जिंदगी बसर करे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के तजर्बात है, जिंदगी गुजारी है, उनके पास जिंदगी के तजर्बात है। और फिर बूढ़ी औरतों के तल्लुक से पौलुस रसूल तालीम देता है। बूढ़ी औरतें जो हैं वो कैसी हों? बूढ़ी औरतों के तल्लुक से कि वो क्या हो, तोहमत लगाने वाली ना हो। क्या हो? तोहमत लगाने वाली बूढ़ी औरतें ना हो। और फिर लिखे अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली। फिर लिखे नशे में गुल मचाने वाली ना हो, नशा ना करने वाली हो।
آج بھی بہت ٹاپ پہ لوگ ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی بہت ٹاپ کے اوپر تھے. عورتیں، میں لکھے میں یعنی نشہ کرنے والی نہ ہو، بوڑھی عورتیں. اور پھر تیسری بات کوالٹی جو اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ دوسروں کو سکھانے والی ہو، جوان عورتوں کو، جوان بیٹیوں کو سکھانے والی ہو. یہ بوڑھی عورتوں کے تعلق سے بیان کیا. پھر پولس رسول جوان عورتوں کے تعلق سے بھی کلام کرتا ہے. وہ کہتا ہے، سنیے، کہتا ہے جوان عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، پھر اپنے بچوں سے محبت کرے، اور پھر لکھا ہے وہ مہربان ہو، دوسروں پر مہربانی کرنے والی ہو، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے. اپنے شوہر کے، آج کل تو الٹی کام ہے بھائی، تابع نہیں، تابع کر دیا ہے، الٹ کام چل رہا ہے زندگی میں. چل رہے یا نہیں چل رہے؟ چل رہے ہیں. لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے میں مل کر چل رہا ہے تبھی گھر چلتے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع، اور آگے سنیے، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہونے پائے. آمین. اس کا مطلب یہ کوالٹیز ہوں تاکہ خدا کا کلام یعنی مسیح کا نام بدنام ہونے. اگر ان مطلب یہ چیزاں نہیں ہے تو پھر مسیح کا نام بدنام کر رہے ہیں، بڑا بھگت بنیا پھرنا ہے، بڑیاں دعاواں کرنا ہے. یہی گل جملے سننے ملتے. پھر خدا کے کلام کے اندر یہاں پر پولس رسول یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ تعلیم سکھانا اپنے شاگردوں کو کہتا ہے، معاشرے کے اندر بھی بتانا، کلیسیا کے اندر بھی بتانا، اور یہ سنانی پڑے گی. اور آج دیکھیں چرچز کے اندر نہیں سنائی جاتی، تو حال بھی ایسا ہی سنانا چاہیے، خادم کو سنانی چاہیے یہ بات. اور خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ پھر نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی. نوکروں کے تعلق سے کہ کسی جگہ میں جاب کرتے ہیں تو اپنے مالکوں کو کیا کرنا ہے، ان کے حکم میں رہنا ہے. جو حکم کیا نا انہوں نے کیا ہے تو جلدی جلدی کام کرنا ہے، نہیں کرنا نہ کرنا. یہ بھی نہ کر دینا، نہ ہی کر دینا. نوکروں کو تعلیم دی گئی ہے کہ چوری چکاری نہ کرنا. چوری کرتے ہیں نا بڑے لوگ، لالچی چاہیے. خدا کا کلام ایمانداروں کے تعلق سے یہ کرتا ہے. پولس رسول ایمانداروں کو تعلیم دیتا ہے کہ بھائی کوئی ورکر کی جگہ پہ جاب کرتے ہو تو مالکوں کی عزت کرنا، مالکوں کے حکم میں رہنا، اور پھر چوری چکاری اتنا لالچ نہ کریے. کچھ نہیں بنتا چوری چکاری میں، آئے گا بڑا پیسہ چوری میں، جائے گا بھی اس طرح. بیماریاں سے بچے بیمار رہیں گے، چل ہو ڈاکٹروں پھر مہینے دے لائے گا. خدا نے بڑے طریقے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی، پولس رسول نے دی کہ چوری نہ کرنا، چلاکی بھی نہ کرنا. چلاکی بھی نہ پائے گا، چلاکیاں دھا دینا مال کا. خدا کا کلام کہتا ہے چلاکی نہ دینا، دیانتداری وہاں پر ہو، اس کے حکم میں رہنا، جو کہے وہ کرنا، نہ کرنا. یہ نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی خداوند کے کلام میں. اور خداوند کے کلام کے اندر بے شمار باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ پولس رسول وہاں پر بیان کرتا ہے، شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے. تیری تعلیم کے اندر، تیری تعلیم کی باتیں جو ہیں وہ کیا ہوں، پاک ہوں، سنجیدہ ہوں، اور پھر صحت کلامی کی باتیں ایسی جو لوگوں کو بلیسفل کر دیں، لوگوں کو خوش کر دیں، شاد کر دیں، مسیح کے پاس لے آئیں. یہ بات اس لیے پولس رسول یہاں پر کہتا ہے جتنی باتیں سچی ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں نیک ہے، شرافت کی ہیں، اس میں قائم رہنا ہے. یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر نظر آئیں. آمین. تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی، ہماری باتیں پاک. مگر خداوند کے کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو تھے خدا کے ساتھ چلتے تھے مگر نشہ بازی کے اندر پڑ گئے، گناہ کے اندر پڑ گئے. لکھا ہے کہ نبی اور کاہن بھی معرفت سے دور تھے.
नबी और काहिन, कलीसिया तो दूर, मार्फत यानी खुदा के कलाम से, तालीम से दूर थे। इसलिए क्या बाइबल में लिखा है, मेरे लोग मार्फत ना होने की वजह से हलाक हो गए। अगर मार्फत नहीं, कलाम नहीं ना सुन दे जिंदगियां च, कलाम नहीं पैदा पै जिंदगियां च, जिंदगियां बंजर हो जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, दुख मिलेगा, अंदर घुलते ही रहेंगे, टेंशन जान गया, नींद नहीं आएगी, परेशान ही रहेंगे सारी जिंदगी। इजराइल के लोग जो थे, लिखा मार्फत नहीं थी उनके पास, मार्फत को रद्द कर दिया था, उन्हें साइड पे कर दिया, बुरी तालीम को अपनाया, दुनिया की तालीम को, बुत परस्ती जादूगरियों के अंदर पड़ गए, झूठी तालीम आग के पीछे पड़ गए, कलाम के अंदर मेजश कर डाली। लिखा है काहिनों और नबियों ने हर तरह के बुरे काम करना शुरू कर दिया। लिखा है उनके बिस्तर जो थे, लिखा है क्या और उल्टियों से, मतलब गंदगी से भरे पड़े थे उनके बिस्तर, और वो इंसाफ करते भी लड़झड़ाते थे, क्योंकि गुनाह की हालत में रोया भी जो थी वो लेते, और फिर गुनाह की हालत में, लिहाजा खुदा फिर उनको सजा देता है। जो लोग खुदा की मार्फत को छोड़ते हैं, कलाम की इज्जत नहीं करते, कलाम को नहीं सुनते, रद्द कर देते हैं, उनकी जिंदगी में ये बातें होती हैं। याद रखिए, खुदा लाता है, कौमों के अंदर लाता है, गुनाह उस जिंदगी के अंदर आ जाता है, मौत आ जाती है, वबा यानी बीमारी आ जाती है, और तबाही उस कलीसिया की हो जाती है। कलीसिया का वो सारी कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है जो खुदा के कलाम को छोड़ देती है, मार्फत को छोड़ देती है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है तेरी तालीम के अंदर क्या हो, पाकीज़गी हो, सफाई हो, संजीदगी हो, और सेहत कलामी की बातें हो। इजराइल की जिंदगी में, इजराइल कौम जो थी, उनकी जिंदगी में सेहत कलामी की बातें नहीं थी, उन्होंने मार्फत को छोड़ दिया, रद्द किया, खुदा ने भी उनको रद्द कर दिया, असीरी के अंदर चले गए, गुलामी के अंदर चले गए, और बीमारियों के अंदर पड़े। लिखा है खुदा के कलाम में, सुनिए जो जुमला मैं बोल रहा हूं, लिखा है इजराइल के ताल्लुक से, लिखा है पांव के तलवे से लेकर सर के बालों तक, लिखा है कहीं सेहत नहीं है, जख्म ही जख्म, घाव ही घाव, लिखा है ऐसे जख्म जो दबाए नहीं गए, निशान निकाला नहीं गया, ऐसे जख्म जिन पे ऑयल नहीं लगाया गया, नरम नहीं किए गए ताकि हील हो जाए, इस कदर वो जख्म ही जख्म है बॉडी के अंदर। भाई खुदा की मार्फत को छोड़ेंगे, कलाम को इज्जत नहीं देंगे, तो फिर हलाकत है, बीमारी है, मौत है, गुनाह है जिंदगी के अंदर। पौलुस रसूल कहता है अपने शागिर्द को, तीमुथियुस को, तीतस को तालीम देता है कि ये तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर जो तालीम नमाया हो, लोगों को तालीम देना, कि तुम्हारी तालीम के अंदर बोलिए पाक बातें हो, फिर क्या संजीदा बातें हो, और फिर लिखे सेहत कलामी की बातें। ये कलामी हेल्थी वर्ड हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए, सेहत कलामी की बातें नजर आए, क्योंकि खुदावंद का कलाम भाई हमारी जिंदगियों में हील करता है, हमें शफा देता है। लिखा है शरीयत के ज़ाब्ते जो थे वो बदल गए, शरीयत के ज़ाब्ते जो थे क्या हुए, मगर मसीह लिखा है अनचेंजेबल है। आमीन। यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। शरीयत के ज़ाब्ते बदल गए, मगर मसीह का जो कलाम है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा कायम रहेगा। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया। शरीयत तो बदल गई, वो हुक्म जो दिए गए वो बदल गए, मगर मसीह की जो तालीम है ये अनचेंजेबल, ये बदल नहीं सकती, ये अब तक कायम रहेगी, और ये खुदा का कलाम है। ये भाइयों हीलिंग, हमें हील करते, हमें शफा देते हैं, और वो बातें भी खुदा के कलाम की बातें, दुनिया की बातों की बात नहीं कर रहा, खुदा के कलाम की बातें। इसके लिए शिरमा हो जाए, भूखे प्यासे होकर आ जाए खुदा की, और खुदाबंद जो है इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत देता है। जब खुदा के कलाम को सुनते हैं और फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, जबरदस्त काम करता है, और खुदा चाहता है कि हम इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहें। आखिरी बात खुदा के कलाम में से करूंगा। खुदा के कलाम में से एक शागिर्द था, अपलूस उसका नाम था, पलूस नहीं अपलूस।
उसकी एग्जाम्पल देने लगा हूं, सुनिए आखिरी बात। अपलूस एक शख्स था, कलाम में माहिर, जब कलाम सुनाता था कमाल करता था। मसीह की तालीम से पूरा पूरा वाकफ बाइबल में लिखा है। ईमान की किताब के अंदर लिखा है कि अपलूस माहिर था, कलाम सुनाने में माहिर, और एक इबादत खाना के अंदर कलाम सुना रहा था। वहां पर अकूला परसिका वहां पर आ गई, उन्होंने उसका कलाम सुना, उसे अपने घर में लिए, घर में लाकर उसे तालीम देने लगे। हालांकि वो माहिर था इस तालीम से, उसे मसीह के बपतिस्मे के तलक से तालीम देने लगा, क्योंकि वो यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था। और फिर अकूला परसिका ने अपने घर में ले आई वो बहनें उसे, और जब वो ले आई तो उसे तालीम देने लगी। अपलूस से कहने लगी, मसीह के बपतिस्मे की तरफ से तालीम देने लगी कि मसीह का बपतिस्मा जो है वो मरना है, दफन होना है और फिर जी उठना है। अभी तो उसने जाना, और फिर जब उसने ये तालीम मसीह के लिए ली, तो फिर उसने जब कलाम सुनाया तो फिर हेल्थिंग वर्ड सेठ कलामी की बातें करने लगा, लोग बरकत पाने लगे, लोग रूह से मबूल होने लगे। जब उसने पाक बातें और फिर जिंदगी के अंदर से कलामी की बातें शुरू की, तो फिर लोग बरकत पाने लगे। तो भाइयों, अगर ऐसा है बड़े बड़े लोग जिनको नहीं तालीम का पता, तो वो भाइयों सीख सकते हैं, उनको हमने गाइड करना है ताकि वो सही तालीम की तरफ आए। अपलूस को तो उन्होंने गाइड किया, वो आ गया, सीख गया। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें सुनना है, क्योंकि ये हमारे बाइबल में लिखा है, ये नाफ की सेहत है। आमीन। और फिर सुलेमान ने यहाँ पर क्या बात की, उसने दानिशमंद की बातें सेहत बख्शती है। हालेलुया। तो ये कलाम सुनने से सेहत मिलेगा, वरना घरों में बीमार पड़े रहे, शफा नहीं पाएंगे, दवाइयाँ यूज कर लें, शफा पाएंगे, फिर जाएंगे, फिर लेकिन मसीह के कलाम को सुनते रहेंगे तो सारी जिंदगी हील और शफा में रहेंगे। आमीन। बरकत पाते रहेंगे। आइए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, मैं चाहूंगा खड़े। आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, आंखें बंद कीजिए।